Hi everyone, what's up? I'm back with another video in which I will discuss my senior data engineer interview experience at Quantech. I will share all the details and provide solution to each and every questions asked. But before we get started with the interview process, let me give you some background about Quantech. So Quantech is a startup company in which you will get a role of either a Databricks consultant or a senior Databricks consultant or a solution architect. The best part is if you are able to excel in the interview, then you can go up to 25 to 30 LPA fixed compensation, and as it is a remote company, so you can work from home. Coming to how you can get shortlisted, you can just go over to LinkedIn and search for either referral from employees working there or search for recruiters and send them a message. If you follow the company, you will start seeing the job post by recruiters on which you can comment for your availability. Similarly, आप naukri.com पे भी सर्च करके अप्लाई कर सकते हो. In my case, मैंने LinkedIn पे कंपनी को फॉलो किया था and I saw a job post by some recruiter जिस पे I commented that I am interested. उसके बाद recruiter connect किया मेरे साथ and asked me for my previous experience. She also informed me about the kind of work that I should expect. Basically इनमें Databricks consultant का रोल है. In short, you get to create ETL pipelines for clients using Databricks. Within 1 week, L1 round schedule हुआ and let's take a look at them now. So L1 round was approx 1.5 hours long and the interviewer was a senior consultant. पहले इंटरव्यूअर ने मेरा पास्ट एक्सपीरियंस पूछा एंड किस टेक स्टैक पे मैंने काम किया ये पूछा. आई वर्कड ऑन डेटाब्रिक्स बिफोर, सो मैंने अपना एक्सपीरियंस शॉर्ट एंड क्रिस्प रखा. माई टेक स्टैक इंक्लूड्स Python, PySpark, SQL, Airflow and AWS. By the way, if you have strong foundation on Databricks and AWS tools, then you will have an advantage here. इसके बाद he asked me a couple of SQL questions and Python code. Let's take a look at those. So here is the first question. Write a query to display all employees whose salary is higher than department average. So जैसा आप देख सकते हो हमारे पास स्कीमा दिया हुआ है employee and department का. Employee में we have ID, name, salary, department ID and department में we have ID and name. So now let's take a look at the answer. Now coming to the answer, so इस query को solve करने के लिए हमें जो भी data और जो भी columns चाहिए वो सब कुछ employee table में ही है. इनफैक्ट डिपार्टमेंट टेबल को बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है. सो इन ऑर्डर टू फाइंड द आंसर मैंने हर एम्प्लॉय के सैलरी को कंपेयर किया उसी के डिपार्टमेंट एवरेज के साथ. नाउ हाउ टू फाइंड द डिपार्टमेंट एवरेज, उसके लिए मैंने एक सब क्वेरी लिखा है. सो एज यू कैन सी आई एम फाइंडिंग एन एवरेज ऑफ अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय सैलरी एंड देन आई एम चेकिंग द डिपार्टमेंट ID बिटवीन द पेरेंट क्वेरीज एम्प्लॉय एंड द सब क्वेरीज एम्प्लॉय. सो यू कैन ट्राई दिस आउट. दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. So moving on to the second question, write a query to display a result from table teams in which every team plays only once with the other team. So as you can see हमारे पास एक टेबल है टीम जिसमें टीम नेम्स हैं इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. नाउ आउटपुट ऐसा होना चाहिए कि हर टीम बस एक ही बार खेले उस पर्टिकुलर टीम के साथ. जैसे इंडिया पाकिस्तान के साथ एक बार खेलेगा एंड श्रीलंका के साथ एक बार खेलेगा. सो रिमेनिंग क्या बचा, पाकिस्तान जो श्रीलंका के साथ एक बार खेल रहा है. इफ हम एक और रो ऐड करें जिसमें श्रीलंका एंड इंडिया हुआ, सो श्रीलंका एंड इंडिया एंड द सेकेंड रो इंडिया एंड श्रीलंका आर कॉन्साइडिंग. सो ऐसा रिजल्ट नहीं होना चाहिए. आई होप यू आर गेटिंग दिस. लेट्स लुक एट द आंसर. नाउ कमिंग टू द सोल्यूशन. सो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है. इनफैक्ट बिना आउटपुट देखे इसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल है. इसका मेन लॉजिक यही है कि हमें हर टीम नेम को कंपेयर करना है अनदर टीम नेम के साथ यूजिंग अ ग्रेटर देन और लेस देन ऑपरेटर. बट स्ट्रिंग को ग्रेटर देन ऑपरेटर के साथ कंपेयर करने से बेटर है हम हर एक रो में एक नंबर असाइन करते हैं, क्योंकि हमें एजम्पशन ये लेना है कि हर एक रो यूनिक है. तो वो नंबर असाइन करने के लिए मैंने रो नंबर यूज़ करा. तो रो नंबर विल गिव 1, 2 एंड 3 टू ईच ऑफ द रोज एंड हम उस 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे यूजिंग ग्रेटर देन और लेस देन. सो इस केस में मैंने ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज़ करा है. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि मे बी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है एट फर्स्ट, बट आप इस क्वेरी को ब्रेक करके इंडिविजुअली रन करके देखो कि क्या होता है. लाइक आप रो नंबर फर्स्ट लगाओ और उसको रन करो एंड नोट दैट आउटपुट. उसके बाद ही आप एंटायर क्वेरी फिर से रन करो टू सी वेयर व्हाट फंक्शन इज हैपनिंग. दैट विल मेक थिंग्स मोर क्लियर टू यू. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. गिवन अ सेंटेंस फॉर एवरी वर्ड, रिमूव दिस सफिक्स ts, ed, ing from end if encountered, and if a word is greater than 8 alphabets, then keep only first 8 alphabets. So ये क्वेश्चन मैंने पाइथन में सॉल्व किया एंड आई थिंक दे विल एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व इट इन ईदर पाइथन और स्केला.
और इसको करने के लिए उन्हीं का एक टेक्स्ट एडिटर यूज़ करा जिसमें दे हैड लाइक 3-4 टेस्ट केसेस और मुझे रन करके शो करना था। सो ये एक बहुत सिंपल स्ट्रिंग स्लाइसिंग का क्वेश्चन है। इनफैक्ट बिफोर मूविंग टू द आंसर आई वुड रिकमेंड कि आप स्ट्रिंग एंड लिस्ट के क्वेश्चंस इजी देख लो, बी इट इन पाइथन और स्केला, whatever is your expertise. तो here is the solution. तो मैं इस क्वेश्चन को ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज दिस इज़ फॉर अ सीनियर पोस्ट एंड वो इतना तो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको कोडिंग आता हो। इनफैक्ट अगर आपको स्टिल थोड़ा डाउटफुल लग रहा है देन व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन ट्राई आउट इन एनी पाइथन कंपाइलर वेयर हैव रिटन राइट i-3:। सो ये स्लाइसिंग कैसे काम करती है। सो अगर आपको एंड से थर्ड लास्ट एलिमेंट उठाना है किसी स्ट्रिंग का या फर्स्ट से थर्ड एलिमेंट उठाना है किसी स्ट्रिंग का, एनीथिंग लाइक दैट, so you can maybe test this out and that might make this question more clear, but I think it's very easy and I'm sure you might know the answer. Now moving on to the next set of questions. So मुझसे कुछ Spark के theoretical questions भी पूछे। First one is, what are serializers in Spark? In Apache Spark, serialization is the process of converting objects into a stream of bytes or vice versa to transfer over network nodes or store in a file or memory buffer. Cairo serializer is preferred as it is 10x faster than Java serializer. इसके बाद क्वेश्चन था what is repartition and coolies? So ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। The answer is repartition can increase or decrease the number of partitions while coolies only decreases the number of partitions. Repartition is an expensive operation that shuffles the data across multiple partitions while coolies is more efficient operation that sticks input partitions together. So आप इस तरह के Spark के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो and like in my previous videos I have always recommended Spark by example website. So आप इस वेबसाइट को go through कर लो starting from RDD to data frame to what different type of functions there are in Spark. आप सब कुछ एक नोट पे लिख के या फिर somehow वो क्वेश्चन ट्रैक करके आप पढ़ लो इसको। तो वो आई थिंक जितने भी थियोरेटिकल क्वेश्चन आएंगे Spark वो इसी वेबसाइट में आप कवर कर सकते हो। Now coming to the final question of this round. So final question भी SQL query था and I had to solve it in a code editor which was similar to LeetCode और HackerRank. So इन दोनों वेबसाइट्स में जैसे आप SQL के क्वेश्चंस देखते हो where the description of the question is given, the schema is given, then some sample data is given, तो उसी तरह से ही ये क्वेश्चन फ्रेम था। The question is write a query to get the user details with approved amount greater than 3000. So basically हमारे पास दो टेबल्स हैं, transaction and wallet. So transaction में we have wallet ID, amount and status, and status में it is given either the transaction is approved or it is declined. And similarly wallet में हमारे पास ID और उस ID के respective user का नाम। So you have to find उन users को जिनका जो amount है वो पहली बात तो approved होना चाहिए और उनका total amount greater than 3000 होना चाहिए। So now let's take a look at the answer. Moving on to the solution. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को नोट करना है जिनका स्टेटस अप्रूव्ड है एंड उसके बाद हमें जैसे ही पता चल जाता है कि ये ट्रांजैक्शंस अवेलेबल है तो हर यूज़र के बेसिस पे उसके अमाउंट को हमें सम अप करना है। तो उसके लिए मैंने ग्रुप बाय यूज़ किया है। यू कैन ट्राई आउट दिस क्वेश्चन एज यूजुअल एंड इट विल मेक थिंग्स मोर क्लियर। So that was it for the L1 round. Major focus इस round का SQL पे था। So what you can do is you can hop on to LeetCode and you can solve as many easy and medium SQL questions as possible. इसके अलावा आप Spark by example यूज़ करके उसमें Spark के भी theoretical questions पढ़ सकते हो and maybe get a look at some string and list type of questions in Python. But Python में I would say बहुत ही easy question ही पूछा जाएगा। I think you should give more preference to your SQL preparations. Now let's move on to the L2 round. So as you can see L2 round was around 40 minutes, was taken by a solution architect and इसमें main preference था आपके past experience में और your theoretical knowledge on Spark and the round finished with one SQL question. So let's take a look at all those questions. तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले मेरा पास्ट एक्सपीरियंस डिटेल में पूछा अलॉन्ग विथ माई टेक स्टैक। मैंने अपने रिसेंट कंपनी में किस किस प्रोजेक्ट में क्या किया है, एंड प्रोडक्ट क्या था, कौन से क्लाउड टूल्स यूज़ किए हैं, कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे मेरा कमांड ज़्यादा है और SQL में कितना एक्सपीरियंस है, सब बहुत ही डिटेल में पूछा। सो व्हाट आई वुड रिकमेंड टू यू इज़ रादर देन कमिंग अप विद एन आंसर टू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑन स्पॉट, आप एक आंसर ऑलरेडी फ्रेम कर लो बिफोर गिविंग द इंटरव्यू। उससे क्या होगा कि आपका हर इंटरव्यू में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन हैं, तो हर इंटरव्यू में आप वो सेम सेट ऑफ आंसर ही दे पाओगे। इसके अलावा ही ऑल्सो आस्क्ड मी सम स्पार्क थ्योरेटिकल क्वेश्चन लाइक
what Spark optimization techniques you have used. So you can answer in this way only. Repartition calls for changing partition size, cache persist for reusability of data across the cluster, broadcast join when one table is significantly smaller than the other one, sorting techniques for skew data and Cairo serializer. अब डिटेल में इसके बारे में स्पार्क बाय एग्जांपल वेबसाइट पे ही पढ़ सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एंड पार्केट टेबल. सो अगर आपने डेटाबेस पे काम किया होगा देन यू माइट हैव हर्ड ऑफ डेल्टा, बट इफ यू हैव नॉट हर्ड ऑफ डेल्टा देन आप गूगल सर्च कर सकते हो. एंड अगर आपको डिटेल में ये कॉन्सेप्ट जानना है व्हाट स्टोरेज लेयर इज डेल्टा, देन आप कोई भी यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हो. बट द शॉर्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, सो डेल्टा टेबल इज अ स्टोरेज लेयर दैट कीप्स ट्रांजैक्शनल लॉग्स in form of JSON file. It stores the version and the timestamp so that one can restore the table if required. Delta table also brings in ACID functionality, so one can update the table as well. So as you know, Spark में हम सिर्फ create and overwrite ही कर सकते हैं, but Delta को यूज़ करके हम update and insert, basically upsert बोलते हैं उसको, ये functionality भी यूज़ कर सकते हैं. So what is Parquet? Parquet is a file format used for writing data in an efficient way. Parquet tables can only be created and overwritten. Truncate and update is not possible. There are no transaction log also with it. Now coming to the final question of L2 round. So ये भी एक SQL query question था. The question is, write SQL query to print the customer ID and product name with most number of products bought by the customer. So हमारे पास दो tables हैं, sales and menu. In order to get the product name, हमें sales and menu को join करना होगा on the basis of product ID. But इस question का main logic समझते हैं. Let's have a look at the sales table first. सो कस्टमर नंबर ए ने सबसे ज़्यादा बार कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है, दैट इज प्रोडक्ट नंबर 3. कस्टमर नंबर बी ने प्रोडक्ट नंबर 2 एंड प्रोडक्ट नंबर 3 को सेम टाइम्स खरीदा है, दैट इज 2 बार. तो ये मैंने पूछा था इंटरव्यूअर से, सो ही सेड कि आप दोनों में से कोई भी एक रिटर्न कर सकते हो. कस्टमर नंबर सी ने सिर्फ प्रोडक्ट नंबर 3 को ही सबसे ज़्यादा बार खरीदा है. सो आई होप यू आर गेटिंग द जिस्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स टेक अ लुक एट द आंसर नाउ. तो फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए आपको इतना तो पता चल गया होगा कि हमें सेल्स एंड मेन्यू को ज्वाइन करना है, बट सेल्स में से हमें सिर्फ उन प्रोडक्ट आईडीज़ को ज्वाइन करना है जिसको कस्टमर ने सबसे ज़्यादा बार खरीदा. कस्टमर नंबर ए ने सबसे ज़्यादा बार प्रोडक्ट नंबर 3 को खरीदा, सो हमें ये वाला पर्टिकुलर रिकॉर्ड ही ज्वाइन करना है. सिमिलरली कस्टमर नंबर बी ने भी सबसे ज़्यादा बार प्रोडक्ट नंबर 3 को खरीदा, तो बी के केस में भी हमें ये रिकॉर्ड्स ज्वाइन करने हैं. एंड क्योंकि सी ने सिर्फ प्रोडक्ट नंबर 3 को ही खरीदा, तो हमें ये तीनों ज्वाइन करना है. अब इस पूरे टेबल में फॉर ए बी एंड सी हमें वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स निकालने के लिए मैंने रैंक यूज़ किया है. सो अगर मैं रैंक यूज़ करता हूँ इन दिस वे दैट आई पार्टीशन बाय द कस्टमर आईडी एंड आई ऑर्डर बाय इन डिसेंडिंग ऑर्डर द प्रोडक्ट आईडी, तो जो हाईएस्ट प्रोडक्ट आईडी है फॉर ईच कस्टमर उसके सामने एक 1 रैंक अटैच हो जाएगा. सो ए के केस में क्योंकि 3 हाईएस्ट था तो यहाँ 1 अटैच हो गया. सिमिलरली बी के केस में भी 3 हाईएस्ट है तो यहाँ भी 1 अटैच हो गया, एंड क्योंकि सी के केस में भी 3 हाईएस्ट है तो इधर भी 1 अटैच हो गया. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द फाइनल रिजल्ट. तो एज यू कैन सी, सबसे पहले मैंने एक सब क्वेरी लिखा है ऑन द सेल्स टेबल, जिसमें मैंने एक रैंक फंक्शन अटैच किया, पार्टीशन बाय कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर बाय प्रोडक्ट आईडी इन डिसेंडिंग ऑर्डर. उसके बाद इस सब क्वेरी के रिजल्ट को मैंने ज्वाइन कर दिया मेन्यू टेबल के साथ इन ऑर्डर टू गेट द प्रोडक्ट नेम. So you can also mock this question up in some code editor and try it out. It will make more sense then. So that was it for the L2 round. इस राउंड में मेजर फोकस था मेरे पास्ट एक्सपीरियंस में. देन डेल्टा टेबल्स क्या होते हैं ये आप ज़रूर देखना. उसके बाद जो SQL क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया इसके पहले, अब वो एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द L3 एंड फाइनल राउंड. सो ये राउंड था 30 मिनट्स का ही. इट वॉज टेकन बाय द CEO ऑफ द कंपनी एंड इसमें मेन फोकस था रीसेंट प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस में ही. ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछे गए. सो लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चंस नाउ. तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे मेरा प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस डिस्कस किया एंड शी डिस्कस दिस एट वेरी डिटेल. सो आप L2 में जो प्रिपेयर कर रहे हो उसको आप थोड़ा सा और डिटेल में फ्रेम करके रखो फॉर दिस राउंड. देन शी आस्क्ड मी टू एक्सप्लेन द वर्किंग्स ऑफ माई ETL पाइपलाइन. देन व्हाट इज द अपस्ट्रीम डेटा सिग्निफाई एंड व्हाट डाउनस्ट्रीम डेटा विल हेल्प द टीम एंड व्हाट डेटा क्वालिटी चेक्स हैव यू क्रिएटेड. सो आप इन्हीं क्वेश्चंस का ही एक आंसर फ्रेम करके रख सकते हो. Now coming to the final set of questions. What are your future aspirations? What challenges have you faced? Any cloud cost optimization that you have worked on? And she again asked the same question, what data quality checks have you created? So she just wanted to know that
आपने किसी क्लाउड डिटेल को यूज़ करके डेटा क्वालिटी चेक किया है कि नहीं, जैसे एज्योर या AWS या GCP, एनी वन ऑफ देम. So if you have done that, then you will have an added advantage in this round. Well, that's it for this video. Thank you for watching till the end. अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा then please like this video ताकि और लोगों तक ये पहुंच सके. Also subscribe so that you don't miss out on my future videos, and I'll see you next time.